Friends, today we discuss numerical problems on first chapter of class 12 physics. I have taken all the numerical problems from NCERT textbook exercise. We shall discuss especially the numerical problems on Gauss theorem's application, but also we shall discuss some problems on electric flux. This is the question number 1.18. In this question, a charge of plus 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter. What is the magnitude of electric flux through the square? This square is given, and side of this square, each side is of 10 centimeter. That's why it is a square. And from the center of this square, at 5 centimeter above, a charge of value 10 microcoulomb is placed. This charge is of positive nature, positive polarity. We have to calculate the magnitude of the electric flux through the square. जब भी हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमें ये देखना है कि क्या दिया हुआ है. What is given? Given that the magnitude of the charge is plus 10 microcoulomb. Plus 10 micro means minus 6 coulomb. This is the value of charge which is given to us. And what is another? Side of square. Side of square is also given. Side of square is 10 centimeter, which may be written as 10 into 1 meter is equal to 10 centimeter, 100 centimeter, and 1 centimeter is equal to 10 raised to the power minus 2 meter. सबको क्लियर है ये कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और यू कैन से 10 raised to the power minus 2 meter. So side of square here it is 10 centimeter or 10 into 10 raised to the power minus 2 meter, and this is the magnitude of charge which is given. And the height of charge is also given. Charge is placed at 5 centimeter height from the center of this square. This is what which is given in this question. What is to be determined or what is to be calculated? To know, क्या निकालना है? To know electric flux through the surface of the through the square. Electric flux क्या होगा स्क्वायर से निकलने वाला, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो हम सब जानते हैं कि जब भी हमें इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी चार्ज के कारण, तो पहले गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा. तो देखिए मैं एक ड्रॉ करता हूँ. ये लीजिए, मैं एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज द क्यूब आई एम ड्रॉइंग like this. So the bottom, this bottom is nothing but this square, means one surface of the cube is nothing but a square. So this side is 10 centimeter, this side is 10 centimeter, 10 centimeter. Each and every side of this structure is 10 centimeter, 10 centimeter. एंड दिस इज द सेंटर. मैंने क्या किया, ये नीचे वाला सरफेस, ये जो सरफेस गिवन है इसको ये नीचे वाला अज्यूम कर सकते हैं, और इसको मैंने गॉसियन सरफेस, इस तरह कैसा गॉसियन सरफेस होगा. और चार्ज कहाँ रखा है? गॉसियन सरफेस क्यूबिकल होगा. चार्ज कहाँ है? सेंटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर. यहाँ पर ये चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, और कितनी हाइट पर है? 5 सेंटीमीटर हाइट पर. इसका मतलब डेफिनेटली ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ द क्यूब पर रखा हुआ है. सेंटर ऑफ द क्यूब पर रखा हुआ है चार्ज. एक बार फिर से देखते हैं. ये 10 सेंटीमीटर, देखिए जो हमें ये डायग्राम दे रखा है, स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर साइड है इसकी, 5 सेंटीमीटर हाइट पर ये चार्ज रखा हुआ है सेंटर से. तो मैंने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया. क्यूबिकल होगा क्योंकि ये देखिए ये स्क्वायर जो हमें गिवन है, और ये चार्ज है 10 माइक्रोकूलम जो 5 सेंटीमीटर की हाइट पर सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर से रखा हुआ है. तो ये डेफिनेटली जब इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है क्यूब की, तो ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इस क्यूब के सेंटर पर होगा. तो हमें क्या निकालना है? फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी इस सरफेस से जो मैंने
सैडेंट किया है सरफेस, उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सिंस एज पर गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। नाउ व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अवर केस, हमें केवल इस स्क्वायर से निकालना है, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा, यानी इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। और ऐसी कितनी सरफेस है इस क्यूब में, 6 फेसेज हैं, तो एक से निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। भाई 6 सरफेस है, एक नीचे है, एक ऊपर है, 2, एक ये साइड में 3, ये इधर की साइड में 4, एक इधर की साइड में 5 और एक ये वाला 6 सरफेस है। तो एक सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स होगा। तो यहाँ से 1/6 और Q का वैल्यू हमें दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, ये हो गया। और एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू, परमिटिविटी का वैल्यू इतना होता है, हम सब जानते हैं। इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो ये 10 है, 10 अपॉन 8.85 इंटू 6 करें, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48 और 3 1, 51 का 1, 6 8 जा 48, 53.10 इंटू और 10 रेज टू द पावर -6 है, -12 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूं तो ऊपर 2 जीरो लगाऊंगा, पॉइंट हटा दिया, 5310 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 और 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 100/531 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 ये वैल्यू आई। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10 रेज टू द पावर 100 में 531 का जब हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगा 1.88 और इंटू 10 रेज टू द पावर 5, क्योंकि एक इसका जीरो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जीरो यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, 1000 इसको करना पड़ेगा, तो ये इतना आ जाएगा। तो फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर कितना आ जाएगा 1.88 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को किया जा सकता है। क्लियर है आई थिंक सभी को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.19। A point charge of 2 microcoulomb is at center of a cubic Gaussian surface। वही cubical Gaussian surface है, ये क्यूब Gaussian surface, right। A point charge of 2 microcoulomb, कितना चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। यहाँ पर ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस। 9 सेंटीमीटर इसका साइड है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो सबसे पहले हम देखें गिवन क्या है, गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 2.0 माइक्रोकूलम और you may write 2.0 means 2, micro means -6 coulomb. So this is charge which is given. Side of this cube is given 9 centimeter. We have to calculate net electric flux through the surface. surface से निकलने वाला। तो वही बात हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिखते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, वेयर Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड। और यहाँ पर कितना चार्ज एनक्लोज है 2 माइक्रोकूलम। क्या ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है थ्रू द सरफेस, एक सरफेस से निकलने वाला। तो हम क्या करेंगे 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो थ्रू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में हम बात करेंगे किसकी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो की बात करेंगे। तो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो कितना हो जाएगा
व्हाट इज क्यू, 1/6 नहीं आएगा क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए थ्रू द सरफेस, ऑल सरफेसेस से, सभी सरफेसेस से निकलने वाला, तो क्यू बाई एप्सिलॉन यही होगा सिंपली। और क्यू का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व करें तो 200, ये पॉइंट हटाया ऊपर 200, 885 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, ये 2000 लिख लेता हूँ, इसको 10⁻5 कर देता हूँ, 885। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 अप्रॉक्सीमेटली, 2000 में जब 885 को डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। और फ्लक्स का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यू का वैल्यू रखा, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू रखा, पॉइंट हटाया, ऊपर 200 आ गया, नीचे 885 इंटू दिस आ गया, फिर एक जीरो हमने इधर ले लिया तो 10⁻5 हो जाएगा, 2000 में 885 को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब। दिस इज अवर सेकेंड न्यूमेरिकल। क्लियर है सबको? नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 1.20 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी 1.20। तो 1.20 में ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। सो फर्स्ट सॉल्यूशन हमें करना है, तो क्या क्या गिवन है वो लिखते जाएं साथ में। गिवन दैट ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण होगा। देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, यानी एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर चार्ज है Q और रेडियस ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। सो दिस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलें तो -2 मीटर। क्लियर? ये रेडियस R गिवन है। और क्या करना है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, यदि इस गॉसियन सरफेस की रेडियस 10 को डबल कर दिया जाए यानी 20 कर दिया जाए, तो ये लीजिए, ये मैं दूसरा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ। ये दूसरा गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। ये सेकंड, ये फर्स्ट गॉसियन सरफेस था जो गिवन है 10 सेंटीमीटर रेडियस का। और यदि गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दिया जाए, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस, तो सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ये एक ही बात हम कर रहे हैं, पार्ट ए की। तो फ्लक्स कितना होगा ये हमें निकालना है, फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए अब ये गॉसियन सरफेस कैसी है, आपके स्फेरिकल है, फ्लक्स कितना होगा, कितना चार्ज एनक्लोज हुआ, टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। जब हम सरफेस 1 की बात करें, जब 10 सेंटीमीटर था, तो Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू आई थिंक Q का वैल्यू हमें निकालना है, Q का वैल्यू निकालना है। सो Q का वैल्यू हम Q मान लेते हैं अभी, और ये 8.85 इंटू 10⁻12 ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ फर्स्ट सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस की बात करें, फॉर सेकंड सरफेस जब रेडियस को हमने डबल कर दिया, जब रेडियस को डबल कर दिया तो सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, Q है यहाँ पर, एप्सिलॉन 0 है, रेडियस का कोई रोल ही नहीं है। तो सेकंड सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक सरफेस के बराबर नहीं होगा? होगा, यानी सेम रहेगा। सो फ्लक्स विल remain same as it does not depend on radius of Gaussian
गॉसियन सरफेस, इस पर डिपेंड नहीं करता है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें तो सेम आ गया भाई, डबल करने से गॉसियन सरफेस को डबल करने से फ्लक्स डबल नहीं हो रहा है, तो सेम रहेगा आंसर, आंसर सेम हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है, ये पार्ट बी है। तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, पॉइंट चार्ज निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन जीरो। अब फाई ई की वैल्यू हमें दे रखी है, कहाँ दे रखी है, ये देखिए -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, -1.0 या 1 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 ये होती है। तो सॉल्व करें इसको, तो -8.85 इंटू 10⁻⁻9 क्या, कूलम, क्या आ जाएगा, कूलम वैल्यू आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा। और कैसा चार्ज होगा, ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेंटर पर कितना चार्ज रखा हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ से सीखने को मिली वो ये है कि गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल करने से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता, फ्लक्स सेम रहता है, क्योंकि फ्लक्स केवल और केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और एप्सिलॉन जीरो पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए सेकेंड गॉसियन सरफेस का फ्लक्स फर्स्ट गॉसियन सरफेस के फ्लक्स के बराबर रहेगा। ऑप्शन ए में सेम फ्लक्स था और ऑप्शन बी में हमने क्यू निकाल लिया। तो इस तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 1.21 ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। ए कंडक्टिंग स्फीयर, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे डायग्राम बनाते जाओ। ये कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस का है, हैज एन अननोन चार्ज। इफ द अननोन चार्ज है इसके पास, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब 20 सेंटीमीटर कहाँ होगा, ये सेंटर था, यहाँ से 20 सेंटीमीटर डेफिनेटली इस स्फीयर के बाहर होगा। तो मान लेता हूँ कि ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और ये एक दूसरा गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्फेरिकल सेल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, रेडियली इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ है। तो देखिए हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है, नेगेटिव चार्ज पर इनवर्ड होती हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इसकी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज नेगेटिव है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर पर नेट चार्ज कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो नेट चार्ज निकालने के लिए स्फीयर पर नेट चार्ज हमें निकालना है। हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है r, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा स्फीयर है, तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम स्फेरिकल सरफेस वाला जो गॉस का एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम एप्लीकेशन, सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, सॉरी ये नहीं होता, ये लीनियर चार्ज के लिए होता है। स्फेरिकल के लिए क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये आउटसाइड द सरफेस होता है। तो ये हमने निकाल लिया, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 1/4 पाई वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू K कहते हैं इसे, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। और Q हमें चाहिए, नेट चार्ज हमें चाहिए, तो Q तो निकालना ही है, Q पता करना है। और R का वैल्यू भी हमें दे रखा है, कितना 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। R का वैल्यू 20 लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर यानी
मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इस फॉर्मूले में रखें ई की जगह, इस फॉर्मूले की हेल्प से ई की जगह रखें 1.5 इंटू 10⁻³ 1/4 पाई एप्सिलॉन का मतलब हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ और Q हमें निकालना है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर मतलब इसको एक बार और लिखेंगे -2। और यहाँ से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा 20 इंटू 10⁻² इंटू 20 इंटू 10⁻² और डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹ ये आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करें तो 400 और 15 चौके 60 400 20 इंटू 20 400 और इंटू 1.5 और ये -4 और ये +3 तो -1/9 इंटू 10⁻⁹ और इसको कर सकते हैं ये -2 तो 4 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा 4 इंटू 15 आ जाएगा भाई। यहाँ से ये जाएगा तो ये -2 हो जाएगा और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 9 इंटू 10⁻⁹ तो 60/9 इंटू 10⁻⁹ तो और ये किस में चल रहा है? ये हमारा चार्ज नेगेटिव आने वाला है क्योंकि इनवर्ड था इसलिए। और ये आ जाएगा 6666 ऐसे आएगा तो 6.67 इंटू 10⁻⁹ नीचे था तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -9 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। और चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि इनवर्ड है तो सरफेस पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम चार्ज की वैल्यू नेट चार्ज ऑन द स्फीयर निकाल सकते हैं। ये 1.21 की बात है। एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।